नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल फॉर IIT जैम सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस और उसके ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी IIT जैम की प्रिपरेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन से। डेफिनेशन: let f be a function from non-empty set A to R, then we say function f is strictly increasing on set A if x1 x2 belongs to A such that x1 is less than x2, then it implies f of x1 is less than f of x2. तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है सेट ए के ऊपर डिफाइंड है सच दैट जब भी आपके पास दो पॉइंट हो डोमेन से सच दैट x1 इज लेस देन x2 एंड इट इम्प्लाइज f of x1 इज लेस देन f of x2, देन फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन डोमेन A। तो अगर हम ग्राफ देखें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास। This is my point x1 and this is my say x2, then this value is f of x1 and this value is f of x2. So x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2. It means function is strictly increasing, f is strictly increasing. So this is the definition of strictly increasing function. हम एग्जाम्पल देख के लेते हैं। एग्जाम्पल: let f is a function from R to R such that f of x is equal to 2x plus 5, then f is strictly increasing function why? Let x1 and x2 belongs to R such that x1 is less than x2, then अब हम क्या शो करना होगा? f of x1 is less than f of x2, then f of x1 minus f of x2 ये निकालते हैं पहले। तो बाय डेफिनेशन दिस इज 2 times x1 plus 5 minus 2 times of x2
प्लस 5, सिंप्लीफाई करें कितना आ जाएगा पास 2 टाइम्स x1 माइनस x2. Now since my x2 is greater than x1, so this quantity is positive, this whole value is positive. It implies just a minute, since x2 is greater than x1, so this value is actually negative. This value is negative, this whole value is negative. It implies f of x1 minus f of x2 is less than 0, so it implies f of x1 is less than f of x2. It implies my f is strictly increasing function. नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं. Let f is a function from closed interval 0 infinite to r, and f of x is actually x square. Then again f is strictly increasing function. So let x1 x2 belongs to interval 0 to infinite such that x1 is strictly less than x2. Then again हम f of x1 माइनस f of x2 का डिफरेंस निकालते हैं. दिस इज x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर. फैक्टराइज कर देते हैं x1 माइनस x2. दिस इज x1 प्लस x2. नाउ आपके दोनों x1 x2 के पास पॉजिटिव क्वांटिटी है बिकॉज दे बिलोंग्स टू इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट. So this value is positive, is positive, but again x2 is greater than x1, so this value is negative. So overall this whole value is negative. It implies f of x1 minus f of x2 is less than 0, which implies f of x1 is strictly less than f of x2, which implies f is strictly increasing function. On 0 to infinite. और जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से इनफाइनाइट के ऊपर. अब आपके पास एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज let f is a function from r to r and fx is equal to x cube. Then show that f is strictly increasing function on R by definition. जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ऊपर, उसी को यूज करके आपको शो करना है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, अगेन आपका फंक्शन है फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A to R, then f is said to be strictly decreasing
if x1 and x2 belongs to A such that x1 is less than x2, it should implies f of x1 is greater than f of x2. Then you say my function is strictly decreasing on domain A. अगर इसका हम ग्राफ चेक करते हैं तो ग्राफ आपको कुछ किस तरह से बनेगा फंक्शन का, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो दिस इज x1 and this is x2, so this value is f of x2 and this value is f of x1, but x2 is greater than x1, it implies function की value f of x1 is bigger than f of x2, it means the function is strictly decreasing. एक बात नोट करिए, जब भी हम फंक्शंस को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए चेक करते हैं तो हम हमेशा ग्राफ को रीड करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम हमेशा ग्राफ को रीड करेंगे लेफ्ट टू राइट, नॉट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब भी हम फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए चेक करते हैं तो हम फंक्शन, अगर आपको ग्राफ पता है तो हम ग्राफ फ्री कैसे चेक करेंगे, हम उसको लेफ्ट से राइट पे चेक करेंगे फंक्शन ग्राफ को, नॉट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे हम। एग्जाम्पल करते हैं अगेन। Again, let f is a function from R to R such that f of x is equal to minus 2x plus 5, then f is strictly decreasing function. So let x1 x2 belongs to R such that x1 is less than x2. Now again हम डिफरेंस निकालेंगे f of x1 minus f of x2. Now f of x1 minus f of x2, using definition it is minus 2 times x1 plus 5 minus 2 times of x2 plus 5, तो सिंप्लीफाई करें आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 2 times x2 minus x1. Now since x2 is greater than x1, so this value is positive, this value is positive, so it implies f of x1 minus f of x2 is greater than 0, which implies f of x1 is greater than f of x2, so it implies my function is actually strictly decreasing, f is strictly decreasing. On domain R. तो एक इंपॉर्टेंट नोट कि आपके पास आपका जो फंक्शन है उसका बिहेवियर डिपेंड करता है आप किस डोमेन के ऊपर चेक कर रहे हैं। तो डोमेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक डोमेन के ऊपर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो और सेम फंक्शन दूसरी डोमेन के ऊपर आपका इंक्रीजिंग ना हो। तो डोमेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस डोमेन पर फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए चेक कर रहे हैं। हम इस चीज़ को देखेंगे एग्जांपल्स में आगे, बट फिलहाल यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं आपको कि आप जो फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक करते हैं तो उसकी जो डोमेन है फंक्शन की डोमेन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस डोमेन पे फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को चेक कर रहे हो, तो डोमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। f is from again interval minus infinite to 0 R such that f of x is actually x square.
Now we claim the function is strictly decreasing, then f is strictly decreasing. On domain minus infinite to 0. So let x1 x2 belongs to interval minus infinite to 0 such that x1 is less than x2. Then again हम डिफरेंस निकालेंगे f of x1 माइनस f of x2 का, then f of x1 माइनस f of x2 is equals to x1 square माइनस x2 square. फैक्टराइज कर देते हैं, it will be x1 माइनस x2 and this is x1 plus x2. Now आपका x1 x2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट टू 0, so it implies x1 x2 दोनों आपके क्या है, नेगेटिव हैं. Both x1 x2 are negative, so this whole value is negative. This value is negative, but my x2 is greater than x1, so this value is positive. No, negative. My x2 is bigger than x1, so this value is negative. So negative will be positive. It implies f of x1 minus of x2 is greater than 0, so it implies f of x1 is greater than f of x2. तो मेरे पास पॉइंट था कि आपका जो x1 था लेस देन आपका x2 था, इट इम्प्लाइज f of x1 is greater than f of x2. It implies f is strictly decreasing. On which domain, minus infinite to 0. तो आप देख सकते हैं कि आपका जो डोमेन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हमने अपने नोटिस किया कि आपका जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, हमने पीछे इंक्रीजिंग भी प्रूफ किया था, और इस एग्जांपल में मैंने आपको एक्स स्क्वायर को क्या प्रूफ किया है, डिक्रीजिंग. बट दोनों आपके जो डोमेन है वो क्या थे, अलग अलग डोमेन थे. आपके पास फंक्शन सेम है बट डोमेन आपके अलग अलग है. f is from minus infinite to 0. Say r function is x square. Again f is from 0 to infinite. Say r and fx is equal to again x square. Now आपको यहाँ पे क्या फंक्शन is strictly increasing. और यहाँ पे क्या था, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो सेम फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर है, बट उसका बिहेवियर डिपेंड करता है डोमेन के ऊपर. तो आपकी डोमेन आपकी जो इनफाइनाइट है तो फंक्शन एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और आपकी डोमेन अगर आपको माइनस इनफाइनाइट टू 0 है तो फंक्शन एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो इसका हम ग्राफ अगर ड्रॉ करें दोनों डोमेन के ऊपर तो ग्राफ आपको इस तरह बनेगा. दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन डोमेन 0 टू इनफाइनाइट, और यह बन जाएगा ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन डोमेन माइनस इनफाइनाइट टू 0. तो यहाँ पर डिक्रीजिंग है, यहाँ पर क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है. तो अगर आपसे कोई पूछता है कोई भी कि आपका ये फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछना है उनसे, ऑन विच डोमेन फंक्शन आर इंक्रीजिंग और फंक्शन इज डिक्रीजिंग. आपको पहले उसकी डोमेन पूछनी है, आप किस डोमेन पे चेक करना चाह रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर, तभी आप कुछ बता पाएंगे वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. विदाउट डोमेन आप कुछ भी नहीं बता पाएंगे. तो डोमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन अगेन हम करते हैं.
strictly monotonic function. Strictly monotonic. F is a function from A to R, where A is again non-empty subset of set of real number. Then F is said to be strictly monotonic on domain on domain A, if F is increasing, strictly increasing on A, or F is strictly decreasing ऑन ए। या तो आपका फंक्शन है पूरी डोमेन ए के ऊपर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, या आपका पूरा फंक्शन डोमेन ए के ऊपर क्या हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो हम बोलेंगे वो जो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन है डोमेन ए के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हमने एग्जाम्पल किया था, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, फंक्शन इज 2x + 5। अब आपने ये चेक किया फंक्शन क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो इन पर्टिकुलर दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक ऑन डोमेन आर। अगेन हमने फंक्शन डिफाइन किया है एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इज -2x + 5। ये भी अभी हमने प्रूफ किया ये फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इन पर्टिकुलर दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक ऑन डोमेन आर। अगेन एक फंक्शन डिफाइन करते हैं h 0 to infinite r such that h of x is x²। अभी हमने प्रूफ किया फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन दिस डोमेन, तो इट इंप्लाइज इन पर्टिकुलर दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। नाउ व्हाट अबाउट दिस फंक्शन g from r to r and gx is equal to x²। आपका जो फंक्शन है x² है, डोमेन आपकी r है, तो ये फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन है? आंसर इज नो। देन g इज नॉट मोनोटोनिक फंक्शन। ऑन आर जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है आर के ऊपर। वाई? दिस इज बिकॉज दिस इज इक्वल टू x²। ध्यान रहे आपकी जो डोमेन यहाँ पे कितनी आर आपको गिवन है, तो अगर हम 0 to infinite चेक करते हैं तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर मैं चेक करता हूं -∞ to 0, सेम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और आपकी डोमेन यहाँ पे क्या है, आर है, तो मुझे पूरी डोमेन के ऊपर चेक करना है ओवरऑल। तो ओवरऑल पूरी डोमेन के ऊपर ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, तो इन आर f is neither increasing nor decreasing, hence f is not monotonic on R। अब जो फंक्शन है मोनोटोनिक नहीं है आर के ऊपर, बट अगर हम आपकी डोमेन को छोटा कर देते हैं, अगर हम सिर्फ डोमेन की बात कर रहे हैं 0 to infinite पे, फंक्शन आपका मोनोटोनिक है बिकॉज इंक्रीजिंग है, और अगर आपने डोमेन कर दिया -∞ to 0, अगेन फंक्शन इज मोनोटोनिक बिकॉज फंक्शन इज डिक्रीजिंग, बट ऑन आर फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, एंड हेंस दिस इज नॉट ए मोनोटोनिक फंक्शन।
तो अगेन आपका जो डोमेन है वेरी इंपॉर्टेंट है फंक्शंस का। ओके हम कुछ एग्जांपल और करते हैं आपके पास। एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम, माइनस इनफाइनाइट टू 0 फंक्शन एफ एक्स इज 1 + 1/x²। अब चेक करना है फंक्शन इस डोमेन के ऊपर इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, और इन पर्टिकुलर ये फंक्शन आपका मोनोटोनिक है या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो लेट अगेन x1 x2 belongs to domain such that x1 is less than x2, then f of x1 minus f of x2 की वैल्यू निकालते हैं। दिस इज 1 + 1/x1 का होल स्क्वायर माइनस 1/1 + x2 का होल स्क्वायर। एलसीएम को सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई, इट विल बी 1 + x1 का होल स्क्वायर 1 + x2 का होल स्क्वायर, इट विल बी x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर, विच इज x2 minus x1 और x2 + x1। अपॉन में 1 + x1 का होल स्क्वायर इंटू 1 + x2 का होल स्क्वायर। नाउ आपकी डोमेन क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू 0, इट मीन्स आपका x1 x2 दोनों क्या आपके पास नेगेटिव हैं, तो बोथ x1 x2 आर नेगेटिव, इट इम्प्लाइज दिस वैल्यू इज नेगेटिव, दिस वैल्यू इज नेगेटिव बिकॉज आपका दोनों ही आपके क्या हैं, x1 x2 दोनों आपके नेगेटिव हैं, तो देयर सम इज नेगेटिव, बट x2 is bigger than x1, so it implies this value is positive. So this is positive, this is negative, so overall value is negative. It implies f of x1 minus f of x2 is less than 0, so it implies f of x1 is less than f of x2, which implies f is strictly increasing. On माइनस इनफाइनाइट टू 0, और जो फंक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा माइनस इनफाइनाइट टू 0 ऊपर। अगेन अगर हम सेम फंक्शन लेते हैं, f इज फ्रॉम, नाउ डोमेन आपने चेंज कर दी 0 to इनफाइनाइट से r, फंक्शन आपका सेम है 1 + 1/x², then f is strictly decreasing. तो आपका इस डोमेन पर फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर चेक किया इंक्रीजिंग के लिए। सो इन पर्टिकुलर अगर मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं फ्रॉम r to r, तो माय फंक्शन इज 1/1 + x², देन f is not monotonic on r। तो r के ऊपर जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक नहीं होगा, बिकॉज r के ऊपर ना तो पूरा इंक्रीज कर रहा है, ना ही आपका पूरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ऑन r। इन पर्टिकुलर f इज नॉट मोनोटोनिक फंक्शन ऑन डोमेन r। तो ये हमने कुछ डेफिनेशंस करी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस की, मोनोटोनिक फंक्शंस की। बट अगर आपको कोई फंक्शन चेक करना हो कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है,
तो अभी तक सिर्फ हमने डेफिनेशन चेक की है कि डेफिनेशन से हम कैसे चेक करेंगे, बट ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर फंक्शंस को डेफिनेशन से चेक कर लेंगे। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो अब हम कुछ टेस्ट पढ़ेंगे जिससे हमें हेल्प मिलेगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए। ऑफ कोर्स उस फंक्शन को कुछ कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होगा, तभी आप वो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अदरवाइज आप वो टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर आपको बाय डेफिनेशन ही चेक करना पड़ेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो रिजल्ट्स के आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट, let f is defined on closed interval a to b to r such that f is continuous on closed interval a to b and f is differentiable on upper interval a to b। देन रिजल्ट के आपके पास, देन इफ f dash x is strictly greater than 0 for all x belongs to a to b, except finitely many points where f dash x is equal to 0, then f is strictly increasing on a to b। और जो फंक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन इंटरवल a टू b। तो रिजल्ट क्या बोल रहा है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल a b के ऊपर, तो आपका जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a b के ऊपर सच दैट उसका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है हर पॉइंट के ऊपर, एक्सेप्ट सम फाइनाइट पॉइंट्स, यानी कुछ फाइनाइट पॉइंट्स को छोड़ के आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो हर जगह क्या है, पॉजिटिव है, और जो फाइनाइट पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपका फंक्शन की वैल्यू, डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, 0 है। देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल a टू b। ये आपका रिजल्ट है। एग्जाम्पल कैसे करते हैं, जैसे तो अप्लाई कैसे करेंगे, लेट माइनस इनफाइनाइट से 0 आपकी डोमेन है, f is function from minus infinite to 0, say r function is again x square। तो हमने पहले चेक किया बाय डेफिनेशन से ये फंक्शन क्या आ रहा था आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा था। अब की जो डोमेन हम इसके लिए बात कर रहे हैं डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, सो डोमेन को हम चेंज कर लेते हैं। let f is a function from 0 to infinite r such that f of x equal to x square। तो इस फंक्शन हमने पहले बाय डेफिनेशन चेक किया, फंक्शन क्या आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा था। अब इसको हम इस टेस्ट से चेक करते हैं। देन सिंस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, आपको जो फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो यहाँ पर हम ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो f डैश x इज इक्वल टू 2x
and this is greater than 0 for every x belongs to open interval 0 to infinite। तो जो डेरिवेटिव हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, और इसका डेरिवेटिव 0 कहाँ होगा, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, और पॉइंट कौन सा आपके पास, 0, एंड एफ डैश 0 इक्वल टू 0। तो फाइनेटली वैल्यू पॉइंट्स को छोड़ के आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। सिर्फ एक पॉइंट पर आपका जो डेरिवेटिव वो 0 है, अदरवाइज आपका जो डेरिवेटिव हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो बाय यूजिंग अबव रिजल्ट इट सेज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन डोमेन 0 to infinite। इट implies f is strictly increasing on domain 0 to infinite। तो आप चेक कर सकते हैं, आपने इसको इजीली देख सकते हैं। ये टेस्ट अप्लाई करने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आसान हो गया चेक करना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r such that f of x equal to x cube। मुझे चेक करना है अब जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या neither increasing nor decreasing है। then fx equal to f dash is equal to 3x square and which is always greater than equal to 0 for every x belongs to r। आपका वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी 3x स्क्वायर, और ये 0 कहाँ होगी, सिर्फ 0 पे, एंड f dash 0 इक्वल टू 0 ओनली। तो सिर्फ एक पॉइंट पे ही आपका डेरिवेटिव कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, अदरवाइज आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक्सेप्ट ओरिजिन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। So using above result, it implies function is strictly increasing. So f is strictly increasing on R। और जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा ऑन डोमेन R। एक और एग्जांपल करते हैं, let f is a function from R to R such that f of x is equal to tan inverse x। now the function is again differentiable, तो हम इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव निकालते हैं, f dash x will be 1/1 plus x square and which is strictly greater than 0 for every x belongs to real line। यानी हर पॉइंट का आपका जो डेरिवेटिव क्या है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आ रहा है। सो इट इंप्लाइज f is strictly increasing function on domain R। अब जो फंक्शन हो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा ऑन डोमेन R। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स किए, इस रिजल्ट का एप्लीकेशन हमने देखा कैसे करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख रहा हूं, उनको नोट करिए, इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट सारे। तो ये क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। इफ f is defined on some domain A to R such that f dash x is greater than equal to 0 for every x belongs to A, then f is strictly increasing on A। Is this true or false? थिंक अबाउट इट। आपको गिवन क्या है, एक फंक्शन है वो डिफरेंशियबल है डोमेन के ऊपर, और उसका जो डेरिवेटिव हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।
मीन्स उसका जो डेरिवेटिव क्या है, नॉन नेगेटिव डेरिवेटिव है एट ईच पॉइंट, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ए. इज इट ट्रू और फॉल्स? This is false statement, because if I take function from R to R such that f of x is equal to say constant function 1, then f dash x will be 0. It implies particular f dash x is always greater than equal to 0 for every point, but f is not strictly increasing. But f is not strictly increasing. आपका जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है. तो इसमें स्टेटमेंट में, इस एग्जांपल में, और हमने यहाँ पे जो एग्जांपल रिजल्ट लिखा उनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? हमने डिफरेंस ये है, हमने यहाँ पे लिखा था कि आपको जो डेरिवेटिव वो 0 हो रहा है ओनली एट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स. आपका जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो 0 हो रहा है सिर्फ फाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर, अदरवाइज उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. जबकि यहाँ पे आपने जो एग्जांपल लिया है वहाँ पे आपको जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो ईच पॉइंट पे क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. इन पर्टिकुलर वो हर एक पॉइंट पे 0 हो रहा है, यानी फाइनाइट पॉइंट्स पे 0 हो रहा है. तो आप इस केस में वो थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो दिस इज एक्चुअली फॉल्स स्टेटमेंट. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. तो आप जब इस तरह से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ईच एंड एवरी स्टेप आपको पता होना चाहिए क्यों हुआ, तो आप मैथमेटिक्स को एंजॉय करेंगे. नाउ एक क्वेश्चन और लिखते हैं. अगेन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है. लेट f इज डिफाइंड ऑन इंटरवल डोमेन a to R such that f dash x is greater than 0 for every x belongs to a. यानी हर एक पॉइंट के ऊपर आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव है. देन f is strictly increasing. Is this true or false? आपको गिवन क्या है? एक फंक्शन है, किसी इंटरवल पे डिफाइंड है, सच दैट फंक्शन डिफरेंशिएबल, और जो फंक्शन का डेरिवेटिव है स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है एट ईच पॉइंट, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. इज दिस ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट? नाउ दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. दिस इज जस्ट जो हमने रिजल्ट लिखा है वही आपका यहाँ पे है. हमने रिजल्ट में क्या बोला था कि आपका जो फंक्शन का अगर डेरिवेटिव है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आ रहा है सारे पॉइंट्स के ऊपर एक्सेप्ट फाइनाइट पॉइंट्स, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा. और यहाँ पर गिवन क्या है? फंक्शन इज जो डेरिवेटिव हमेशा क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि वो उसका जो डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 नहीं हो रहा है. तो इन पर्टिकुलर इट इम्प्लाइज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बाय आवर रिजल्ट. तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर्स को, जिसमें हम रिजल्ट लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए, और कुछ हम प्रॉब्लम्स करेंगे उनके ऊपर बेस आपकी. तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच.